Welcome, viewers, to Season 2 of the Nation Pod Talk. Here, we feature inspiring personalities from all walks of life, diving into their stories, experiences, and the lessons they've learned along the way. Today, we have with us a very special guest, someone who's a powerhouse of sports journalism, charismatic presenter, and a voice every sports lover in India instantly recognizes, Arjun Pandit. From breaking down the biggest sporting events to hosting high-octane discussions with legends of the game, Arjun's energy and passion have made him a household name in the world of sports media. Today, we'll dive into his journey, the hustle, the highlights, the challenges behind the camera, and of course, his love for the game. Hosting this episode is our incredible host Suresh Rajan Iyer. Hello viewers, this is Suresh Rajan Iyer from C Nation Pod Talk. As usual, we bring on a lot of celeb sports persons and presenters and the dancers and Mrs. India, and various walks of life, and we discuss with them their challenges, their struggle, their travel path to the victory, and know little deeper into their personal life also. So this time we are fortunate to have one of the upcoming charismatic sports presenter, Arjun Pandit. वेलकम ऑन द बोर्ड अर्जुन, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपने जब मिस इंडिया बोला, मैं पीछे देखने लग गया। मैंने कहा, क्या है मिस इंडिया? मैं कान खड़े हो गया ऐसे मेरी हमने किया है मिस इंडिया वीसी क्वीन। इट वाज हेल्ड इन December 24। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप ये जो प्रेजेंटेशन के अंदर आप किस रुझान कैसे हुआ? सर, ये पहले तो आपने बड़ी जबरदस्त शब्द इस्तेमाल कर लिया आपने पहले ही। मैं सीखते रहता हूँ। प्रेजेंटेशन में कहानी हिंदी पे कैसे पहुंचा वो तो बात की है, पर बचपन से मैं फुटबॉल का शौकीन हूँ। ओके। एंड शौकीन बियॉन्ड just going and playing in school or playing in the evening. Right. I wanted to take it up a level, and I used to play. I was pretty good. You get to know if you can play, you can't play. मतलब फुटबॉल में so all my life I've always wanted to be a किस पोजीशन में खेलते थे फुटबॉल? So midfield में, और मेरे को गोल मारने का कोई लेना थे। मेरे को गोल बनाना पसंद था। Connector, yeah. So I used to like being that. I used to like being the guy who goes and fights for everyone, and those qualities have been in me. In team sport, वो उसके बलबूते पे ही आया है। तो फुटबॉल खेलता था जी। फुटबॉल फिर मैं गया गोवा खेलने के लिए। वहाँ पे उस टाइम आपका NFL होता था, तो सलगांवकर एक टीम थी। वहाँ पे उन्होंने 1 साल के लिए मेरे को रखा, और वहाँ पे थोड़ा रियलिटी चेक मिला मुझे ज़िंदगी का कि जी तगड़े लड़के आए हैं खेलने के लिए। बट more than that, I got a reality check कि how difficult it is to be a professional sportsman, because suddenly now you have to switch on from passion to job. And now a bad night's sleep, no one gives a damn about you. If you had a bad night's sleep or if you're missing home, you come and play. You don't play, तुम बिब पहन के बैठोगे बाहर। तो वो these were a couple of learnings I got, but the one learning was that I wasn't good enough, or maybe I didn't pursue it any further beyond that. पर मुझे एक reality check मिल गया, तो मैं वापस दिल्ली आया, and फिर मेरे घुटनों की कहानी शुरू हुई। घुटना एक बारी गया, ACL 2 बारी गया। तो फिर I'm lucky to be born into the family I've been born into. So my parents decided, what do you want to do now? तो मैंने कहा जी स्पोर्ट्स में तो हो नहीं रहा। तो वो जो लड़के जो घुमे हुए होते हैं हमारे दिल्ली वाले, वो जाते हैं बाहर MBA करने। तो मैं भी गया जी बाहर, कहीं मुझे जाना है। बट वन डे बिफोर मी ट्रैवलिंग अब्रॉड, मैं दिल्ली खेलता था रेगुलरली फुटबॉल। वहाँ पे मैं मैच खेलने गया, लास्ट ओल्ड टाइम 6 अम्बेडकर स्टेडियम, और वहाँ पे मेरा पहला ACL घुटना चले गया on that day, one day before traveling to the UK. And that for me was a blessing in disguise, क्योंकि तब फिर मैं जब पड़ा रहा वहाँ पे बिस्तरे में 1.5-2 महीना, I realized कि I don't want to do this. Even if I can't make it as a footballer, I want to be around sports, because I have been lucky in a sense कि मुझे और कुछ पसंद आया ही नहीं है ज़िंदगी में। So it's only been sport. मेरे और कोई नज़रिया है ही नहीं देखने का। मेरी ज़िंदगी इसके आसपास ही पूरी घूमी है। मेरे दोस्त भी सारे स्पोर्ट वाले हैं, हमारे बात करने का तरीका भी वैसा ही है। So I said I want to be around this, and at that time there was a channel called Z Sports. और Z Sports में हमने बातचीत कर ली, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत फुटबॉल खेला था। Z Sports had newly got rights to Indian football, which they were trying to push. Okay. And so उनको इंटर्नशिप पे उन्होंने रख लिया मेरे को।
और वहाँ से फिर कहानी थोड़ी बहुत मैं ब्रॉडकास्ट की समझने लगा एंड एक दिन आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ अ प्रेजेंटर कॉल्ड मयंती लैंगर. Yeah, I शी know. यूज्ड टू होस्ट इंडियन फुटबॉल Cricket. और नोवी कबाड़िया जी Yeah. जो थे, ही यूज्ड टू कम एंड होस्ट द शोज एज एन एक्सपर्ट. एक दिन सर खालसा कॉलेज में फंस गए क्लास में, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास बंदा ही नहीं है बैठने के लिए. उन्होंने कहा ओए ये खेला है थोड़ा बहुत, बैठा दो इसको चुपचाप. Yeah. एक बारी वहाँ से बैठ गया ना, आई हैवंट लुक्ड बैक सिंस देन आई हैव जस्ट फाउंड सम वे और द अदर ऑफ डूइंग इट. And that's been my journey pretty much. That's how I got into all of this. No real plan, but just the love for sport, the right place at the right time. और फिर वो ठोकर खा के गधा घोड़ा बना है थोड़ा बहुत, वैसे ही कहानी है जी. इन्हें आपने अपने नाम को सार्थक किया. अर्जुन का भी एक ही लक्ष्य होता था, Thank you. वो मछली की आंख है. जैसे कि आपने कहा स्पोर्ट्स में जाना है और कहीं कुछ करना नहीं है, जी तो उसको आपने सार्थक किया है. बिल्कुल. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. तो इसमें Thank you. शुरुआत कहाँ से, Thank you, sir. किधर हुई आपकी? जी टीवी में आपको ट्रेनिंग मिली या एज अ ट्रेनर यू वर जी देयर? स्पोर्ट्स में सर. जी उसके या बाद कौन से स्पोर्ट्स को आपने मतलब अपनी वाणी दी है? सर सर जी स्पोर्ट्स में वाणी तो नहीं दी है, मैंने गंद ही मचाया है पहले 5-6 साल. अच्छा. बिकॉज मैं यू नो बच्चे अभी आजकल काफ़ी छोटे बच्चे ये इसके माध्यम पे हाँ. आते हैं, बातचीत पूछते रहते हैं. और मैंने ना अपने आप को एक बहुत पहले से बोला है, चाहे जितना भी काम कर लो, जितने भी फॉलोअर्स हो जाएं, जितने भी हो जाएं, पर अगर कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है तो मैं बात करूंगा उससे. तो तभी जब Chayan also got in touch, I said I will not say no. I will not look at do you have a number of following or anything like that, because हम भी उस फेज से और से गुजरे हैं. घुस चुके हैं, राइट. गुजरे हैं हम. तो यू हैव टू ट्राई एंड हेल्प एज मेनी पीपल, बिकॉज जो हमारा जो ये फील्ड है, इट्स अ वेरी एम्बिगुअस फील्ड. हाउ डज वन गेट इनटू इट? एक बार आप घुस भी जाते हो, आप कोई फॉर्मल ट्रेनिंग से तो आते नहीं हो, बिल्कुल नहीं. तो फिर आपके यू गेट ऑन टू कैमरा एंड ऑल विद जस्ट रेफरेंस पॉइंट्स कि जी मैंने एक हर्षा भोगले को देखा है, मैंने जी किसी को देखा है कुछ करते हुए, एंड देन यू ट्राई डूइंग दैट, बिकॉज पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है. तो वो गड्ढे बनाने वाली बात वही है कि पहले 5-6 साल तो लगते हैं समझने को बिल्कुल कि जी अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपना एक नजरिया है, उसको भी आप रख सकते हो. Those first 5-6 years I keep telling people is people will ridicule you because you don't know what you're doing. So the person who's watching you doesn't know what your journey is and how much you don't know. राइट. तो वो तो फर्स्ट ऐसे आपको जज करेगा, भाई क्या है, कौन है नकली, क्यों रखा है इसको यहाँ पे. So the first 6-7 years were like that only. So मैंने पहले इंडियन फुटबॉल पे काफ़ी काम किया. Luckily for me, when compared to the other presenters, मैंने behind the camera बहुत काम किया also. ओके. So in a sense, I know how to produce. I can sit and make an entire show. I know how to write a script. So how it helps me now as a presenter is कि मुझे पता है कि मुझे कितना बोलना है. मुझे पता है कि स्टोरी जो आई है उसका कितना लिंक होना चाहिए टू बिल्ड अप टू अ स्टोरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पीछे अगर भसड़ जो हमारे कान में कभी कभी मचती है, तो I don't get too phased by it because I've been a part of that भसड़, so I know exactly what's happening. As opposed to someone who doesn't know, वो कभी कभी I've seen so many people, young models and all who come, वो suddenly यहाँ पे 5-6 आवाज चिल्ला रहे होते हैं, वो बेचारे ऐसे हो जाते हैं थोड़ा. So that was that, and then from there I went to NDTV 24/7. ओके. जी. वो पहले रिसेशन आया था सर, अगर आपको याद है, 2008 9 यस यस 7-8 में. 7-8. तो मैं कहते रहता हूँ रिसेशन में जी स्पोर्ट्स बंद करा के वो बंद हो गया था ना चैनल जी उस टाइम. तो हमने बंद करा के मैंने नौकरी ढूंढी 24/7 में. ओके. एंड दैट्स वेयर माय प्रॉपर एजुकेशन इन अ सेंस स्टार्टेड. ओके. बिकॉज न्यूज चैनल के जो चैलेंजेस होते हैं, दे आर वेरी यूनिक. यस. यू आर वर्किंग ऑन अ डेडलाइन. आई नो. It's as simple as that. So you know everything has to become fast. Yes. Everything, your senses have to pick up things very quickly. Your reflexes should be very fast in that channel. 100%. 100% सर. और अगर नहीं करोगे तो डंडे पड़ते हैं. ये हाँ. लोगों को लगता है कि जी मेकअप लगा के अच्छे कपड़े पहन के आदमी आ जाता है, पर पीछे is a very tough task master behind you. Yes. You know. And I was very lucky that I was part of a team in NDTV with people like Sonali Chandar. She was one of the foremost first sports presenters country की, and they used to run, and they were all 3 women who were running our ship, and they were so good sir. मैं मतलब वो डंडे भी मारते थे, लेकिन डंडे मारने के बाद 10 मिनट बाद कंधे पे हाथ रख के हंसी मजाक भी होता था. So it was never like you're targeting. आप डंडे भी मारते हैं तो पैट इन द बैक भी चाहिए. बिल्कुल
दैट्स बिल्कुल कॉल्ड सर। एप्रिसिएशन होता है ना, कि When दैट्स you अ know, सीनियरिटी, उसी को कहते हैं मेंटरिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आई फाउंड सम वंडरफुल पीपल देयर। निखिल नाज, हु इज नाउ ऑफ कोर्स विद स्पोर्ट्स तक, या निखिल नाज वाज देयर। देयर वाज सच अ वंडरफुल टीम ऑफ पीपल कि वहाँ पे फिर 4 साल मेरी असली पढ़ाई हुई है, in terms of behind the camera, on the camera. And जो वो, when you find a nice bunch of people, at least in our field, when you feel at ease, या when you feel at ease, on camera I express myself at ease. राइट। So I saw that change in me. It came अपने आप ही। नहीं तो अगर आप डरे ही रहते हो बिफोर गोइंग ऑन एयर, 1 2 3 ऑन एयर, आप तो डरे हुए हो। जब तक आप वापस आते हो आधा शो खत्म हो गया, निकल गया शो, पसीने आ गए। तो वहाँ पे एनडीटीवी में जी कहानी मैं असली सीखा हूँ, प्रोडक्शन की, कैमरे की। एंड देन आई डिसाइडेड कि आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम न्यूज़, क्योंकि मैंने इश्तिहार देखा, स्टार स्पोर्ट्स ने डाला हुआ था। दिस वाज द टाइम व्हेन ESPN एंड स्टार हैड मर्ज्ड, एंड सो दे वर ट्राइंग टू टेक आउट अ स्पोर्ट्स सेंटर का हिंदी वर्जन। ओके। सो दे हैड पुट आउट इश्तिहार डाला था, वे लुकिंग फॉर प्रेजेंटर्स, ऑडिशन हो रहा है। आई थिंक वेस्ट दिल्ली में कहीं ऑडिशन हो रहा था। मैंने कहा मैं जाके ट्राई करके आता हूँ। ऑडिशन दे मैं देख के आ गया, ऑडिशन दे दिया सर। ऑडिशन दे दिया, और वहाँ पे भी यू फंबल्ड, बिकॉज उस टाइम आदत ही नहीं है सर। एकदम से आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल देता है तो आप पहले ना ये थोड़े होता है, करेक्ट करेक्ट, बैकफुट पे रहते हो। राइट राइट। बट डाल दिया, कर दिया, जो भी कर दिया। एज लक वुड हैव इट, उनके पता नहीं कौन सी उनने कुछ भांग खाई होगी, उनको अच्छा लग गया कुछ। तो मैंने कहा सही है भाई, अच्छी बात है। और बुलावा आ गया वहाँ से। And that's when my journey with Star Sports started. I think around December 2013. 2013. I shifted. I shifted bag and baggage to Mumbai, and then I spent about 5 years at Star. Okay. और उसके बाद से मैं फ्रीलांस में लग गया हूँ अपने आप से। तो स्टार में फिर आपका वो जो कर रहे हो असली ये जो खुद अपना जो कर रहे हो वो कब से? 2018 से? 2018 से सर। मैंने त्याग पत्र डाल दिया था जस्ट 2019 IPL एंड वर्ल्ड कप से पहले। वो 2019 आया था ना कि आपका IPL के बाद सीधा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में था। उसी से पहले त्याग पत्र मैंने डाल दिया था अपना। ओके। और ये सोच के कि स्टार मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा, पर बात हुई नहीं। तो वो भी अलग कहानी है। बट देन यू नो, एज लक वुड हैव इट, दैट गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन ESPN Cricinfo. Okay. I did the IPL on ESPN Cricinfo. I did the World Cup on ESPN Cricinfo. And from there, Sony was doing India's tour of West Indies. And they liked what they saw. And they called me for the 2 test matches. Wow. तो वहाँ से फिर सोनी का रिश्ता शुरू हुआ है मेरा फिर। वेरी नाइस। तो जो टेस्ट मैच किए, वो उसका एक्सपीरियंस किसके साथ माइक शेयर किया आपने? दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट सर वहाँ पे गावस्कर। फर्स्ट टेस्ट? No, no sir, मैंने टेस्ट मैचेस तो स्टार पे किए हुए थे। So I was doing India cricket from about 2015-16. जो आपके सारे होम सीजन्स हो रहे थे, योर फर्स्ट सीजन ऑफ द IPL स्टार पे, वो सब किया मैंने उनके साथ। बट एट दैट टाइम आई वाज स्टिल नॉट द मेन गाय। जतिन था, मयंती थी, आई वाज स्टिल मोर दैट काइंड ऑफ गाय कि कपड़े पहन के नाच के आ जा भाई, थोड़ा फ्लेवर ले आ मेरे भाई। तो दैट्स वाई वो त्याग पत्र इसलिए दिया मैंने कहा यार, जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी ऑफ बीइंग द मेन गाय हु इज ड्राइविंग इट, ये दैट्स अ इजी कुशनी जॉब, आई कुड हैव इजीली डन इट। Correct. I need to move on. I need to make my own seat, and because they're good at what they do. Those two. Yes. I'm not saying or anything else. So that's why I decided I'm taking a punt. मैं निकल रहा हूँ और देखी जाएगी क्या होगा फिर। And then you... आधे लाइफ में डिसीजन ऐसे ही होते हैं सर, देखी जाएगी क्या होगा। रिस्क तो लेना ही पड़ता है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज यू कांट गेट एनीथिंग, बिकॉज आपको अगर मोती निकालनी है तो समुद्र में डुबकी लगाना ही पड़ता है। बिल्कुल सर। बट मैं एक्चुअली अपने आप को आज ही, इट कीप्स कमिंग बैक टू मी, आई एम ब्लेस्ड टू बी बोर्न इनटू द फैमिली दैट आई हैव बीन बोर्न इनटू। इन अ सेंस आप कह सकते हो मेरी लॉटरी निकल गई कि आई कैन अफोर्ड टू टेक दीज डिसीजंस, बिकॉज मुझे पता है मेरा घर है, मेरा परिवार है। यू नो, लाइक स्टार एट दैट टाइम इन 2019, व्हाटएवर हैपेंड, आई सेड आई एम नॉट साइनिंग फॉर व्हाटएवर वाज बीइंग ऑफर्ड। और अगर घर पे मैंने वेल्ले की तरह बैठना है तो मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि है मेरा घर। सो आई वाज लकी. I'm not saying everyone can do it. I was lucky, and I said, if this is the cards that Upar Wala has dealt me, then I will play them to full effect. I'll use it as a badge of honor. तो आज इसलिए all my decision making is like that. Sound family background था, इसलिए वो decision ले पाए हैं।
ले पाए 100% सर, बिकॉज आई मीन वी कांट ब्रैकेट वन डिसीजन फॉर एवरीवन. सबके अलग अलग अपने नजरिए, सबके अपनी कहानियां हैं, यू नो. सो यू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड योर सराउंडिंग्स. So over a decade or so, you are into the cricketing, the commentators and the presenters. So कुछ ऐसा I know sir. यादगार इंसिडेंट किसी के साथ भी, मतलब सर यादगार पहला तो आपने वेस्ट इंडीज का पूछा था ना. हाँ, वेस्ट इंडीज. तो मैंने कहा यार 2 टेस्ट जो आपने किया तो था. मैं 2 टेस्ट, हाँ जी वो सोनी के लिए था. तो एक्सपेक्टेशन आ गई अपने अंदर से कि यार अच्छा करना है, पहले अपने आप को बोल रहा हूँ. एंड आई एम फ्रॉम, मैं बोर्डिंग स्कूल का लड़का हूँ. आई वाज इन डून स्कूल, देहरादून. तो वहाँ पे जो प्रॉपर शुद्ध हिंदी घर पे भी नहीं चलती, और क्योंकि कैमरे वाली हिंदी आप जानते होगे, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हिंदी. अब आदि नहीं थे वो वाली हिंदी बात करने के लिए. हम तो वो वाले हैं कि 3 शब्द हिंदी 2 शब्द इंग्लिश, 3 शब्द इंग्लिश 2 शब्द हिंदी आ गई. इट्स अ इंग्लिश इन दैट सेंस. इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश. हाँ जी इंग्लिश. बिल्कुल सर. तो मैंने कहा यार क्या बात है भाई, अब ये मौका मिल रहा है तो मैं पढ़ाई करके जाऊंगा. तो मैंने ट्यूशन लिए हिंदी के. ओके. बिफोर गोइंग फॉर दैट फर्स्ट टेस्ट इन एंटीगा. और जो आप शब्द आप बोल रहे हो, वैसे मैं पूरे पढ़ाई करके गया. मैंने 15 सेशंस करे, और वहां पे डे 1 पे जाके पहले शो प्री शो में मैंने इतना गंद मचाया है हिंदी को लेकर. हो पूरा का पूरा उल्टा हो गया. बट इट वाज अ लेसन. ओके. एंड द लेसन वाज दिस, that you have to find your way of speaking. Yeah. एक तरीके का भाषा हो ही नहीं सकता. आप अपना तरीका ढूंढिए. So that's why I decided I am not going to try aping someone who's very good and who's so fluent in Hindi. I will be comfortable in my own skin. Yes. And if I am comfortable, you watching at home will realize that. Because sir, actually में हम realize नहीं करते, जो घर पे बैठ के देख रहा है ना, वो 1 मिनट में अंदाजा लगा सकता है कि ये नकली है, ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ कर रहा है. द कैमरा डजंट लाई एट ऑल. करेक्ट. इफ यू आर ट्रू टू हु यू आर, दैट पर्सन विल बिलीव व्हाटएवर यू आर सेइंग एट द एंड ऑफ द डे. दैट मींस वो अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, या मैं ये शैली है, तो फिर सामने वाला पसंद करेगा ही उसे, क्योंकि आई एम एंजॉयिंग इट. व्हेन आई एंजॉय, यू विल. जी बिल्कुल. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस इन दैट? ट्रेनिंग हो गई 15 दिन. सब वहाँ, हाँ वो हो गई, वो गंद मचाया भी दिया, लेकिन उसके बाद फिर यू टर्न मार दिया और अपने आप को फिर वापस कंफर्टेबल. एंड आई वाज लकी दैट द गुड पीपल एट सोनी. नहीं तो होता क्या कि अगर आप आते ही गंद मचा देते हो तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है, यार ये क्या हो रहा है. बट दे द अदर वे वर लाइक, यार डोंट वरी, वी हैव गॉट यू हियर फॉर अ रीजन, वी सीन व्हाट यू डूइंग, सो कम इनटू योर कंफर्ट जोन. एंड एक बार ही आपको वो भरोसा मिल जाता है ना कि कोई आपके ऊपर कंधे पे हाथ रख रहा है, then you just it's crazy, it's an intangible sir, you can't quantify this, what someone is showing faith in you, and I feel the things that are intangible in life, they are the ones that are bigger drivers in taking you where you are, I feel. Actually वो एक confidence level बढ़ा देता है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. सेम थिंग इन स्पोर्ट ऑल्सो. सो मेनी टाइम्स अब मैं जो बैठ के खेल देखता हूँ, एक तो ऑफकोर्स होता है कि आप एक टेक्निकलिटी से आप देख रहे हो, बट आई फील इन आवर ब्रॉडकास्ट देयर इज सच अ मेजर मिसिंग एस्पेक्ट ऑफ द इंटेंजिबल्स. जी वो यार वो लड़का होगा बड़ा अच्छा, लेकिन आज उसका बुरा दिन चल रहा है, क्योंकि है कभी इंसान चलता है वैसे भाई, है कि नहीं. तो आई लाइक फोकसिंग अ लॉट ऑन दोस काइंड ऑफ थिंग्स. बट वो हुआ सर, वो 2 टेस्ट अच्छे हुए वहाँ पे. आशीष नेहरा थे, अजय जडेजा थे, मोहम्मद कैफ थे. आई न्यू ऑल दीज पीपल बिकॉज आई डन अ लॉट ऑफ वर्क विद स्टार. वो अच्छे हो गए. फिर उससे पहले एक बारी मैं स्टार के लिए गया था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, जो हम लोग पाकिस्तान से हारे थे फाइनल में. तो उसमें से एक चैरिटी इवेंट थी, विराट कोहली ने ऑर्गेनाइज करी थी. एंड एज लक वुड हैव इट, मैं था वहाँ पे, तो मेरे को जी भेज दिया वहाँ पे उनका इंटरव्यू करने के लिए जनाब का. और मैंने कहा सर ये तो प्रॉपर ब्लैक टाई इवेंट हो रहा है. तो मैंने कभी जिंदगी में ऐसे कपड़े पहने ही नहीं, मैं पूरा सज धज के आ गया वहाँ पे. एंड बिकॉज यू नो दिस, यू व्हाटएवर योर इंटरव्यू टाइमिंग इज, यू कम 1.5 hours or 2 hours before, whatever frame set हो रहा है, whatever. Yeah, correct. तो वो सब हो गया. And I am walking around and they were auctioning off a lot of things like Messi's shoes, Okay. AB de Villiers gloves. It was for a charity organization. और मैं पूरा सज धज के, वो जो अशर्स थी वहाँ पे अंग्रेज,
उनको लगा ये खरीदने वाला बंदा है, उनको ये नहीं पता मेरे जेब में 5 पाउंड थे। और मैं भी कॉन्फिडेंस से उनसे बात कर रहा हूँ, यस लवली लवली। So anyway, फिर विराट आया, luckily that is how I broke the ice with him. Like you sit and you just before the camera starts you're talking, and I told him this story. I said यार इन मेमो को लगा कि मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, जेब में 5 पाउंड है। वो हंसने लग गया जोर जोर से, and that's how we did the interview. And here's a lesson for people. When that interview happened, it was the first time I was doing an interview with Kohli, and of course it's a big interview for any channel. So मेरे को पूरा चिट्ठा आया था from the channel, we'll ask this, we'll ask that. Yes. ये सेंचुरी वो सेंचुरी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको खड़ाक हटा दिया साइड पे. Okay. I just put it aside and I said I will react to what the gentleman is That's very talking to me. important. That's very important. As an interviewer, Because that's very important. आजकल होता है, हाँ, हम अगर अपने यहाँ पे अगर पूरा भूसा भर देंगे तो फिर रिएक्ट करने के लिए जगह क्या है? जगह ही नहीं बचेगी. है ही? सही बात. It's a आप very खाली छोड़ो ना थोड़ा. basic fact of an interviewer, as a host, as an anchor, as a presenter, कि सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर सवाल करो, उसको समझो. बिल्कुल. या That's correct. तो मैंने 3-4 मोटी चीजें पकड़ ली भाई की, जो भी. तो हाँ. मैंने कहा यार इंटरव्यू करना है, हर कोई पूछ सकता है कि आपने ये शतक मारा, आपने वो करा. मैं 3-4 पकड़ूंगा and I'll react to whatever you're talking. That's correct. And as luck would have it, the interview went off very well. It was in that interview where he admitted that him and Anushka, were involved. That time he said it publicly for the first time. मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, बाद में पता चला. Because मैं इतना ये बॉलीवुड में ध्यान देता नहीं हूँ. तो interview went well and so on, and couple of incidents. ऐसे तो कोई incidents है नहीं, but ये है that I found myself more at ease. Initially what used to happen was because I used to keep telling myself कि यार मैं क्रिकेट इतना खेला नहीं हूँ, मैं फुटबॉल वाला बंदा हूँ. तो इनिशियली आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आप पढ़ लेते हो सारे स्टैट्स, मैं इंसाइक्लोपीडिया बन जाता था. बट फिर वही बात हो रही थी ना कि कुछ खाली छोड़ ही नहीं रहा था यहाँ पे. तो वो चाहे कुछ भी बोल दे, मैं अपने जी स्टैट लेके आया हूँ. So there's a disconnect in the conversation. That's a mismatch हो जाता है. You know, mismatch. Then you find yourself over time. Yeah, you find your comfort over If time. you give a certain time, the subject has to sink in the mind of the person who is presenting it. Then automatically the words comes out. बिल्कुल. What happens is like बिल्कुल. like you said that you have played football a lot and you have commented on that, but you must not have played cricket that much, or you have played cricket up to certain level. बिल्कुल नहीं. Basic level, very basic, very basic. खेले होंगे तो स्कूल कॉलेज में तो गली में सब. हाँ, वो तो खेले हैं, वो तो खेले ही हैं. हाँ. ऐसा तो होना पर उस लेवल का नहीं, उस लेवल का नहीं खेला ना सर. लेवल इज इम्पोर्टेंट. लेवल कम्स इन अ डिफरेंट लेवल. बट खेल की जानकारी होना, थोड़ी बहुत ABCD ये जानकारी होना, क्योंकि मार्च में मैंने वो इधर मैं मुंबई में हूँ, तो नवी मुंबई प्रीमियर लीग होता है, उसका भी मैंने कमेंट्री किया था. So I did nine matches there. So they wanted in Hindi and English both. Well, okay, no problem. वो क्या होता है कि जाके खिलाड़ियों के नाम पता नहीं है, लेकिन जाके बोलना पड़ता है. बोलना पड़ता है. हाँ, सही बात है. टूर्नामेंट्स में नाम इतने पता नहीं होते ना. वो तो चैलेंज है सर इन दिस टूर्नामेंट. वो चैलेंज है. लिस्ट आ जाती है, कभी नहीं आती है, then you have to carry on. Don't keep quiet on the mic. क्योंकि रेडियो कमेंट्री और टीवी कमेंट्री में बहुत डिफरेंस है. आपने दोनों किए हैं प्रेजेंटेशन में, रेडियो में भी किए हैं. रेडियो नहीं किया सर मैंने. रेडियो नहीं, because that's both are different. नहीं. Philosophy working on that. When you see and tell something, people are watching you also and listening to you and also watching the game. In the radio, your voice is heard. Nothing is heard. Your voice will, I agree. People realize that, visualize the situation there. So that's a very, very different art from television commentating and the radio commentating. So you would like to try sometime? आप क्यों? I would love to sir, क्योंकि मैं तो वो नहीं होता, वो मशीन में आपने सिक्का डाल दिया और फिर चलते रहो जी, चलते रहो. So but I don't know, since आप रेडियो को अच्छी तरह जानते हो, I feel there is such a massive opportunity. I don't think radio's reach is being optimized for this game. Yes, you're right. मेरे हिसाब से. You're right. It should not only be restricted to commentary. You should be विवाद के ऊपर बात करो.
क्रिकेट के ऊपर, इसके ऊपर बात करो, यू शुड डेडिकेट 2 hours a day to a cricket program. Yes, I don't yes. think it's been done. ये Because नहीं हुआ। आपकी जो असली ऑडियंस है, जो 100 सर, जो असली ऑडियंस है वो रेडियो ही सुनती है। करेक्ट। जो आपका व्यूअर है वो रेडियो सुनता है। बिल्कुल। मैं लोगों को इतना बोलता हूँ दैट आप अगर इस काम में आ रहे हो, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने व्यूअर को जानो कौन है। मतलब आप अगर दूसरी धुन में चल रहे हो, नहीं जी हम तो ऐसी बात करते हैं, तो वो डिस्कनेक्ट तो आ ही गया ना, तो फायदा क्या हुआ फिर? डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली। क्योंकि क्या होता है कि वो दोनों प्रेजेंटिंग अलग ही चीज है। एक तीसरा होता है कि लाइव प्रेजेंटेशन ऑन स्टेज, वो तो एकदम लाइव होता है, वो एक दूसरे से बात करते हैं, लोग भी आपको देख रहे हैं। All 3 different presentations are there here. One is only your voice is heard, one is your face is seen and your voice is heard and the event is going on. Third is you are lively present on the stage with the audience. So तीनों चीजें अलग-अलग हैं, उसकी तीनों की अलग-अलग पैरामीटर्स हैं। What is the trajectory, sir? So I can tell you trajectory of someone on camera. Trajectory for someone on radio, how do you start? Like how do you sound initially जब आप शुरू करते हो, फिर कितने टाइम में आप कंफर्ट लेवल ढूंढते हो और फिर वो क्या बदलाव आता है in speaking? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आपने कहा कि कंफर्टेबल अपने आप को होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंफर्टेबल। इफ यू आर एट ईज देन एवरीथिंग विल बी प्लेजेंट। इफ यू आर स्ट्रिक्ट और अपने आप को एक जकड़ में रखते हो तो फिर वो शब्द भी निकलते नहीं निकलते। हाँ, शब्द निकलने के लिए आपके अंदर एक वो ईजनेस होना चाहिए। ईजनेस हो तो फिर शब्द वो इट्स वर्बल गेम। आकाशवाणी या रेडियो इज ओनली वर्बल गेम। आप जिस तरह से डिस्क्राइब करते हो, हाउ यू स्टार्ट, दैट मेक्स द सेंस। बिकॉज टीवी प्रेजेंटेशन या इसमें क्या होता है कि देयर इज समथिंग सीन ऑल्सो। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे खड़े हो, ये सब बात सोचते हैं लोग देखने वाले। चले हाँ ये ब्लू शर्ट पहना, टी शर्ट पहना, ये पहना, वो पहना, ऐसी बात कर रहा है, पैर हिला रहा, हाथ हिला रहा, सब दिखाई दे रहा है। लेकिन रेडियो में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। यू आर जस्ट लिसनिंग टू दैट एंड योर अटेंशन, जिस तरह से वो अटेंशन ग्रैब करते हैं। लॉट ऑफ कमेंटेटर्स वर देयर अर्लियर। आज के तारीख में उतना कमेंट्री रेडियो में नहीं होता, नहीं हो रहा। This is the it's a shame. I feel that's a massive it's a fallout. empty space है वो सर। it was a grab करने का empty space है। विजुअल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन में, क्योंकि बीच में मैं भी गया था आकाशवाणी में कमेंट्री देने के लिए। वहाँ भी बातें होती हैं, लेकिन कंटिन्यूसली यू टॉक अबाउट द गेम व्हिच इज गोइंग ऑन, इवेंट कंटिन्यूसली टॉक। मतलब बेस्ट एग्जांपल आई कुड गिव इस सुशील दोषी सर थे। हाँ जी, आपने अगर सुना होगा उनको, सुना है मैंने। सुरेश सरैया थे, ये सब उस जमाने के कमेंटेटर थे जो 70s 80s 90s में। उसके बाद आप जैसे लोग आए प्रेजेंट करने के लिए टेलीविजन पे, जतिन सप्रू और आप तो एकदम क्लोजली काम किए होंगे। कैसा अनुभव रहा उनके साथ? हाँ सर, वो he's always been ahead of the curve. वो उसका from day one when I've seen him, he's looked ahead of the curve in everything. And एक होता है कुछ बंदों में ना, just फट over the time you also mature and then you get to know 100% nuances of the game. अगर आपको पता चल गया ना, तो then you can very well discuss with any of the top class sports person. Totally, but with Jatin, what I've seen is to say if normal trajectory to get comfortable is, I'm just saying, ऐसी number डाल रहा हूँ, is 3 years. 3 years. Jatin is doing that in 1.5 2 years. Yes. That is what I mean. Fast learner, quick to grasp. There are certain innate qualities in human being. आपके अंदर जो क्वालिटी है वो किसी और में ज्यादा हो सकते, कम हो सकते, लेकिन आपके अंदर अगर भरपूर में है, प्रचुर मात्रा में है, तो फिर you will be definitely picking up the fast. जो threads होते हैं, बिल्कुल सर, हो सकता है किसी के कम, किसी के ज्यादा है। ये हर एक इंडिविजुअल सेम नहीं है ना। जो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ शायद अर्जुन नहीं कर सकता। यही बात है ना कि इंडिविजुअली देयर इज अ डिफरेंस इन द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये होता है। बिल्कुल सर। एंड दिस जो आपने बात बोली, दिस सो अप अंटिल अबाउट 2016, ये जो मेरी पर्सनैलिटी अभी आप देख रहे हो, दिस इज माई नॉर्मल पर्सनैलिटी। मैं दोस्तों के साथ भी ऐसी टांग खिंचाई कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बकवास कर रहे हैं, आचा पाचा, we've grown up only doing that, so it comes naturally to me. For some reason up until 2016 I was in that phase कि I was not comfortable, यार कैसे करूँगा शो।
तो this personality was not coming out. It wasn't. So there was a phase, I still remember, मैं दिल्ली में कुछ tournament करने आया था और सोच रहा था बैठ के. And by the way, for all the people, ये जो लोग कहते हैं ना, people who look down वेलों पे, वेला बनना अच्छी चीज़ है भाई. वो आपको ना सोचने पे मजबूर करता है कभी कभी. तो हम भी बैठे हुए थे सर, कुछ सोच रहा था. And मेरे को आया यार, would I like watching myself on camera? Okay. And I said no, I wouldn't want to. I would switch off. So if I myself want to switch off, how can I expect you to keep that, channel going? So I said I need to change something. So I consciously made an effort to bring out my personality on screen. And parts of that was to unlearn the amount of information I was going in with, which was the build up to my show, the 1 hour before my show. I'm not touching my rundown. I'm not looking at किसने क्या किया. I'm not cramming it. It's there. Trust your muscle memory. पूरी जिंदगी खेल पे बताई है, पूरी जिंदगी फील्ड पे बताया है, लोगों से बातचीत करिए. Trust yourself to come up with a good reaction. Yes, correct. And I'm focusing more on things like how do I put myself in a good place. So मैं भर के मैं जोर के गाने बजाता था स्टार स्पोर्ट्स में. होय होय. हाँ, और फिर मैं उस वाइब को, and I would also consciously do it. You would have also realized this. There are a lot of people before a broadcast will come and say, "ओए हो पाएगा ना, कर लेगा ना, देख रहा है वो देख रहा है." I would just weed out these people. I would not go anywhere near them. Block it out. In my domain, I am the best. I am going in with that thinking. Yes. I've consciously made that effort. So if I'm with anyone, I'm with you because मैं हंस रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ. And उसी के साथ मैं पहले I would make sure that I have to ace the first 2 minutes of the show flawless, and then the energy takes you. Exactly. Because फिर आपने उसको भी पकड़ लिया जो आपके साथ शो पे, और फिर आपने फिर जुगलबंदी लेके आप कहानी आगे ले. तो कहानी थी सोनी पे, because Sony has been such a lovely parent to me in that sense. They've given me the space to breathe, the space to be who I am. तो सोनी पे हम लोग जो शो पे जाते हैं तो हमारे रूम्स होते हैं where we get ready and everything. तो मैं थोड़ा पहले आता था, मैं अपना म्यूजिक लेके जाता हूँ और मैं बढ़ा रहा हूँ, भड़ म्यूजिक चला रहा हूँ. एक दिन मैं बजा रहा हूँ और सबके साथ मैं नाच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, गेटिंग रेडी इन द जोन. तो सडनली मैं पीछे देखता हूँ कोई नाच रहा है, तो सनी सर है. मैंने कहा बंद करो भाई गाने. सीधा आपका वो आया था ना. देन सर, अरे व्हाट आर यू डूइंग, प्ले इट. आप ये सोचो सर, इंग्लिश रूम्स, हिंदी रूम्स, सब नाच रहे हैं, गाने बज रहे हैं. जी सर. हाँ जी बोलिए. नाच रहे हैं, गाने बज रहे हैं, एंड उसी वाइब को लेकर आशु भाई, वीरू भाई, अजय भाई, हम लोग शो की शुरुआत वैसे करते हैं. अब आप बताओ, हाउ कैन आई नॉट हुक यू? आई विल हुक यू देयर एंड देन. दैट्स माय थिंग. Definitely. So that was the aim. This is the creation of atmosphere just before the beginning. ये होना ही चाहिए. This is the very very basic point of a presenter or a show. This is a show stopper. शुरू करने के पहले मैं तैयार मूड में हूँ. स्टेज ओपन करने से तैयार हूँ, वार्म अप करने से पहले मैं मूड में आ गया. So then that the momentum goes up. It reaches the crescendo, Yeah, totally sir. बहुत एकदम हाई लेवल पे चले जाते हो, and then you maintain that pitch. वो पूरा प्रोग्राम ऐसे चले जाता है. This correct. Yeah. Very very basic thing of a presenter or a even for the stage also, when you open it, wings से तैयार होते हैं. But I've seen so many people, but people don't do it, sir. I have not seen many people do it. These are such basic psychological tricks. Yes, I do agree with this. But I've seen so many people वो बैठ के दबे हुए रहते हैं. Everyone is different. So I don't like intruding. Like Star में मैं जब करता था ये सब, you can make out when someone is new or is going, so is a little conscious. तो थोड़ी 2-3 लड़कियां होती थी, मैं जोर से गाने बजा रहा हूँ, they're getting disturbed, so I would stop. But I don't want to spoil your space. You're in a different place in your trajectory and so on and so forth. But it's just such a basic, simple thing. Create your environment that you want on the show before the show. Yes. And take it in with you. That's the basic fact of any program to people conducting. You be ready in that position. तो वहाँ से आप आगे ले जा सकते हो. इस बहुत बड़ी बात इतने सरल शब्दों में आपने कहा है ना. तो ये एक्सपीरियंस जो होता है कि जब आपने शुरू करने के पहले, ये तो आपने कह दिया कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुँचता हूँ, लेकिन इज देयर एनीथिंग व्हिच यू प्रिपेयर 24 आवर्स पहले ये सब करना है क्या? प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ
Any exercises you go through, mental exercise, physical? Not really, sir. But basically, I trust myself. Earlier, first pre-2016, pre-2017, I would not trust myself. जब आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते, आप तैयारी ज़्यादा करते हो. I feel. I'm just, ऐसे कि भाई 12 साल से कुछ काम कर रहे हैं, उससे पहले 12 साल जिंदगी के फील्ड पे बताएं, ट्रस्ट योरसेल्फ, you know. So I trust myself. Secondly, the few things I do, if at the start of a show, I don't like a prompter. I like going always without prompter. Prompter throws me off. But the only time I will remember and रट्टो मार के कुछ जाऊंगा is the start of my show. Start, yeah, that's कि जी पहले वो 2 मिनट के flawless मैंने निकालना है with full energy. Yeah. और उसके बाद then that's the thing. जैसे रात को अगर कोई rundown आया था तो then I sit and I see the rundown. I go through it. पहले क्या करता था, पहले वाला आदमी क्या था तो कि जो अच्छा इस रनडाउन में तो ये स्टैट डालते वो डालते, मैंने वो चिट्ठा पूरा बना दिया. नाउ आई एम जस्ट स्कैनिंग इट एंड इट्स देयर. रात को उसके साथ सो रहा हूँ फिर मैं, इट्स इन मी, एंड देन इन द मॉर्निंग आई एम फ्रेश ऑल ऑफ दैट. आप कह रहे थे कि प्रिपरेशन जो होता है बिफोर द इवेंट, यू प्रिपेयर योरसेल्फ. So is there any exercise you go through this, or mental preparation ज़्यादा होता है इसमें? More mental than doing any exercise. What we can tend to do is it's just another show. तो you don't need to go out of the ordinary कि मैं extra कर रहा हूँ. नहीं तो आप वो बेफजूल का प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हो. Correct. So it's just a normal day. चाहे मैं वर्ल्ड कप फाइनल कर रहा हूँ, चाहे मैं IPL फाइनल कर रहा हूँ, it's a normal day. It's the same show. So I always make sure to tell myself that. And जो मेरा basic routine होता है, my basic routine is eat light in the morning, get up in the morning, make sure I do my exercise. I feel good. It's been a part of my life. Sportsman आदमी रहा हूँ तो it's just been a very automatic part of my life. पानी पियो. लोगों से मैं बात बहुत करता हूँ in the morning. Cut. Don't go into your shell, because there's a beauty in sharing and embracing energy. Right. And it stays with you. It's again an intangible. I believe in the intangibles. मैं थोड़ा वो, हालांकि मैं बड़ा अजीब टाइप आदमी, but I feel I'm very philosophical in my thinking, but in a very weird way. So then I do that, and then of course जो आपको pre-routine मैंने बताया, don't give it way more importance than it deserves. कभी we can give things too much importance. It's okay. It's just another day. गंद मचाओगे, वापस फिर मौका मिलेगा ठीक करने का. तो even on a show, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ. Make something bigger than what it should be. Correct. It could be a final, it could be anything. It's just a show at the end of the day. मुझे आपने पूछा को किस्से के बारे में पूछा. अभी हाल ही में इंडिया जब श्रीलंका गई थी, गौतम गंभीर साहब की जब कहानी शुरू हुई थी, तो मैं होस्ट कर रहा था शो. अच्छा. वहाँ पे सोनी के लिए, एंड वो उसमें ओडीआई सीरीज हार गए. कलेश हो गया. तो मैंने अपने आप को बोल दिया था कि क्योंकि मैंने अक्सर हमारे चैनलों पे क्या देखा कि हम मातम बनाते हैं कि जी हार गए, ओहो ये हो गया वो. मैंने शो की शुरुआत भी मैंने कहा देखो टीम हारी है, मातम नहीं बनने वाला शो पे, चाहे कुछ भी हो जाए. तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम मातम बनाने वाले हैं तो ये शो आपके लिए नहीं है. We will analyze a game. Right. One team has played well, the other team has not been able to play well. Correct. We will analyze it for that, but we're not going to do hi मेरी इंडिया क्या हो गया मेरी इंडिया को. None of that. So I firmly believe कि कभी-कभी मेरे को I feel कि मैं इतना क्रिकेट खेला नहीं हूँ. There are disadvantages to it, so I have that. But for me, the big advantage is that I can always give a third-party perspective. मैं दूर से देख सकता हूँ सर, मैं उस नजरिए से देख लूँ, तो I don't get too invested sometimes. कि हो जाता है ना कि बिल्कुल you get involved into that. When you get involved into that, ऐसा लगता है कि मैं हारा. हाँ, ये बहुत फील होता है. यही मेरा सवाल था अगला, जो आपने अभी उसका आंसर ही दे दिया है कि are you affected by the happenings on the field? Not at all. That's the fantastic nature of the presenter. Presenter has to be neutral. But it works in theory. I've very rarely seen it practically. At least in India. Okay. Indians are very much attached to the, जब अपना गेम होता है तो फिर बस वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं और बड़ा चढ़ा के नीचे भी गिराते हैं. Sure. I think it helps कि my base is football. So वो attachment in a sense. और सर ये कहानी मुझे अजय जडेजा told me about this. He's a wonderful thinker. He's again a wonderful
you know, it's his thinking. You meet a lot of cricket players and you feel like ये उनकी दुनिया है, and outside of that दुनिया you feel like they're a little lost. Sometimes I feel. With Ajay Jadeja, he comes across as a worldly thinker. And I feel they, as cricketers, हम लोग उनको हम दर्जा देते हैं कि भाई पढ़ाई नहीं करते, ये नहीं करते. But they have the gift of the biggest education in this world, which is travel. Yes. And travel and meeting people and regularly meeting people on a regular basis. मैं उनको देखता हूँ सर, वो ऐसे पता कर लेते हैं कि ये सामने कौन है. चाहे आप मैं पहली बारी मिला हूँ, वो समझ जाते हैं इंटेंशन क्या है बंदा. बिकॉज जिंदगी भर लोग उनके पास आए हैं, वो लोगों से बात करें, एंड सो उनका ना एक हैबिट सा बन जाता है. मसल मेमोरी हैबिट इज अ क्रेजी थिंग. You're tuned, So I feel they are mentally tuned to that, you know, switched on. the atmosphere and the surrounding. इतने लोगों को देखते हैं, इतने लोगों से Absolutely. बात करते हैं, तो अपने आप में एक वो परसेप्शन बन जाता है उसमें. बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली. तो उन्होंने मुझे एक बार ही बोला था, आई रिमेंबर. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू एट सोनी इज दैट आफ्टर फिनिशिंग द शो, हम लोग, बिकॉज आफ्टर अ शो एक एनर्जी लेवल जिससे आप बात कर रहे होते हो, एकदम से नींद आती नहीं है. यू कांट, एंड आई हैव ट्राइड डूइंग दैट, आई हैव ट्राइड फोर्सिंग माय सेल्फ टू स्लीप. यू कांट स्लीप. यू आर वाचिंग, आप दीवार देख रहे हो या कुछ देख रहे हो. सो रादर वी ऑल कम एंड वी सिट इन समवन्स रूम एंड वी जस्ट वाइंड डाउन. यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ द डे वेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, या आप गेम की बात कर रहे हो. तो उसमें उन्होंने मुझे बोला था, यार तेरी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि यू आर नॉट टू इन्वेस्टेड इन द स्पोर्ट. यूज इट एज योर एडवांटेज. And I said, yeah, that's a fabulous thing to say. That's a very So I always, very interesting Yeah. point to mention about it. कि मैं उस गेम में नहीं हूँ, लेकिन उस गेम के बारे में बात करूंगा तो ऐसे थर्ड पर्सन बात करूंगा always. absolutely sir, absolutely. तो I always do that. So don't get too affected. तो मैं अगर Instagram पे भी, अभी मैंने अपनी दुकान थोड़ी शुरू करी है, देखा मैंने, धक्के बहुत मार सारी चीज के. देखी है आपकी. तो उसमें भी the whole intention is that I will not run after when to post. कि जी इवेंट हो गया तो वो सब रेस में लग जाते हैं ना कि जल्दी से डालो, कुछ भी डाल दो. तो वो नहीं करने वाला मैं. करूँगा तो वो बोलूँगा जो मेरे मन में आ रहा है. मोटी बात. तो अगर मेरे को लग रहा है आईपीएल फाइनल से पहले लोग सिर्फ कोहली के फाइनल की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा भाई, मतलब और भी बंदे हैं उस टीम में, ये क्या ये कोहली लगा के रखा हुआ है. मतलब वो खुद बोलेगा ये क्या बकवास चल रही है. और गालियाँ पड़ती हैं, ठीक है, बट यू विल बिलीव यू मी, देयर आर सो मेनी पीपल हु एग्री आल्सो. नहीं, बात सही है ना, कि रूटीन ऑफ द मिल बात करने के लिए तो हर कोई करता है, कुछ अलग करें, भले गाली भी मिले लेकिन अलग किया है. Yeah. That makes the sense. As in the aim is not alag, but the aim is if I am feeling something, then I don't care कि दुनिया बोल रही नहीं बोल रही है, I will say it. Simple. Because it will come out with conviction. Again, on camera, on Instagram, again an intangible. Your conviction and your belief into जो आप वो बात बोल रहे हो. Your Instagram reels and all. हाँ जी. बड़े मजेदार लगते हैं देखने के लिए, अच्छा लगता है. हाँ, जैसे कल ही डाला मैंने, मतलब सब वाहवाही कर रहे हैं. मैंने कहा यार ये थोड़ा बोरिंग नहीं हो रहा है यार, ये वहाँ पे किलो के भाव के रन बन रहे हैं, क्या हो रहा है ये, मतलब. तो अब लोग अग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, बट आई एम फीलिंग इट, सो आई हैव सेड इट एंड आई पुट इट. That's the point you said. किलो के रन बन रहे हैं, करीब 2000 रन बन चुके हैं इस मैच में. बन चुके हैं सर, बन चुके हैं. 500 दोनों टीम बनाई है. अगली बार भी 600 बनना जीतने के लिए. तो मेरे ख्याल से अगर इसी सीरीज की बात करें तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सीरीज व्हिच इज गोइंग ऑन? आई थिंक सर इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जी रन बन रहे हैं किलो के भाव से, वो अलग बात है. बट ये एक पुरानी कहावत है कि जी अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है, एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द बीसीसीआई, आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं. मैं सिस्टम को मैंने देखा है, जो लोगों सिस्टम में काम करते हैं, इट इज़ अ फुल प्रूफ सिस्टम. हम कहते रहते हैं पैसा पैसा पैसा, वो ठीक है, द पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सिस्टम. तो जो सिस्टम इतना मजबूत है, यू एज अ टीम कैन नॉट अफोर्ड टू इवन थिंक ऑफ हैविंग अ डाउट कि जी कोहली नहीं होगा, रोहित शर्मा नहीं होगा तो क्या होगा. क्या बात कर रहे हो. वो चलो वेस्ट इंडीज सोच सकता है, वो वेस्ट इंडीज सोच सकता है, वो श्रीलंका सोच सकती है.
आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो टूटा हुआ सिस्टम है। अरे भाई आपके पास तो बंदे भर भर के आ रहे हैं, मतलब वेट कर रहे हैं सर, इतने लोग वेटिंग लाइन में लगे हुए हैं। बेंच स्ट्रेंथ अपना बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। सो हाउ कैन यू अफोर्ड टू थिंक लाइक दैट? यू कांट। एंड दे प्रूवन वंस अगेन। उस लड़के का कप्तानी से पहले बोल रहे हैं जी बाहर जाके रन नहीं बनाया। अब बताओ, आज इतना बना दिया। बताए चलो व्हाटएवर कंडीशंस चाहे जो भी हो, अगर कंडीशंस वो कल आई थिंक वरुण आर्यन ने ब्रॉडकास्ट पे ही सेड अ गुड थिंग, ही सेड एवरीवन इज सेइंग रन बना रहा है, सब रन बना रहे हैं, बट शुभमन इज राइट ऑन टॉप, वे अहेड ऑफ एवरीवन एल्स। He's making So you have to sensible, give credit. staying at the wicket and staying for long and making runs also. यानी उसने कर दिखाया और वो प्रूव किया है कि भाई आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। Yeah, it's such a satisfying moment. I always think from a sportsman's point of view, जब आपको लोगों को चुप कराने का मौका मिलता है ना, you might not say it publicly because इन लोगों का क्या होता है कि हर छोटी बात को आप मिसरिप्रेजेंट कर सकते हो. It's possible. So for them, the safer bet is stay quiet. It's easier, less controversy. But अंदर से I'm sure as a human being, एक जो satisfaction मिलती है, it's there. You might not admit to it, नहीं है साहब, but the satisfaction is there. Satisfaction जो अंदर से मिलती है ना, कि इस तरह के मैं चैलेंज सिचुएशन को स्वीकार के और प्रूव कर रहा हूँ, वो वो जो फीलिंग है ना, वो एक्सप्रेस के बियॉन्ड है। बिल्कुल सर, ये कह रहे हैं ताने मार रहे हैं, लेकिन मैं प्रूव कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। ये जैसे इन लोगों ने रिटायरमेंट जब अपनी अनाउंस करी थी, तो मैंने उस टाइम पे रील डाला कि मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है, और मैंने कहा आपको उनको चुपचाप जाने देना चाहिए, rather than saying आओ आओ आओ। बहुत गालियां पड़ी, जो भी हुआ, but I genuinely believed that if गौतम गंभीर का जो साइकिल है उसका फर्स्ट फेज अभी खत्म हुआ है, which is the transition of these guys. Yes. He himself had admitted it to me in a chat we had once, I remember. Now the second phase starts. कि किस डायरेक्शन में आप टीम को ले जाना चाहते हो और कौन है, क्योंकि जब आपके सर टीम में वो उतने मंजे हुए बंदे हैं, अच्छे से अच्छा लड़का जितना भी आपकी एनवायरनमेंट हो, वो थोड़ा ऐसे रहेगा। अब उस एनवायरनमेंट में वो शेर है वहाँ का, वो खुलेगा, उसका एक अलग लेवल आएगा बाहर। करेक्ट। और वो तभी पता चलेगा जब वो एनवायरनमेंट उसको मिलेगा वहाँ, उसको जब वो एनवायरनमेंट मिलेगा, देन ही विल प्रूव हिमसेल्फ एंड देन द लीडर विल से ओके आई हैव डन द गुड थिंग। लेकिन उसके पहले तो सारी दुनिया बस उंगली दिखाती रहती, पर ये नहीं वो नहीं। लेकिन ये सारा चीज जो है ना, अभी मेरे ख्याल से पूरा चेंज हो रहा है इंडियन क्रिकेट में। अभी जो है ऑल दिस न्यू बॉयज हैव कम एंड दे आर प्रूविंग देयर मेंटल। ये सॉलिड प्लेयर लग रहे हैं। आप जायसवाल को देखो, आप जायसवाल है, केएल जायसवाल हो गया आपका, केएल खेल गया, साई सुदर्शन हो गया, करुण नायर इज देयर, यू हैव ऋषभ पंत हुज अगेन। तो आप मुझे बताओ कि आपको किस बात का डाउट था? मुझे तो ये टीम और तगड़ी लग रही है आगे जाके। एग्जैक्टली। तो फिर तो यू कैन इल अफोर्ड एज एन इंडियन क्रिकेट टीम फैन, you have the luxury of being cocky, putting your collar up, because your system is so strong and is giving you players bhar ke that you can't afford to have even a iota of doubt in your mind. Correct. BCCI is one of the robust body in the world now today. आपको उससे सही में बात करते हैं, BCCI कितना कोई स्ट्रांग नहीं है, बेस इतना मजबूत है, जड़ें मजबूत हैं, तो फिर उसकी शाखाएं मजबूत हैं, तो पूरा पेड़ ही मौजूद है। बिल्कुल सर। बिकॉज सर मैं अगेन थर्ड पार्टी आपको बताऊं, मैंने इंडियन फुटबॉल को बड़ी करीबी से देखा है, तो मैं दूसरा साइड जानता हूं कि क्या होता है कि जब बंदे नहीं आ रहे, सिस्टम प्लेयर नहीं दे रहा, फंसे हुए लोग, क्या बच्चों को हो रहे हैं, क्या उनके हाल चल रहे हैं। एंड देन यू हैव दिस साइड कंप्लीट ऑपोजिट, नॉर्थ, दैट इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, एंड सो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द सिस्टम। डेफिनेटली क्योंकि एक ही चीज ऐसा है ना कि अपने देश में क्रिकेट को इतना प्रायोरिटी और यदि इम्पोर्टेंस मिली है, और उसके वजह से वो बॉडी भी स्ट्रांग बनी है, बिकॉज अदर बॉडीज आर नॉट सो स्ट्रांग नाउ। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस टेलीविजन एंड कमिंग इनटू टेकिंग टू द कबड्डी एंड ऑल, गेनिंग सम इम्पोर्टेंस, नो कबड्डी इज आवर नेशनल गेम, बट फिर भी उसको मिल रहा है। हॉकी इज देयर, हॉकी इज लाइंग बिहाइंड, हॉकी को भी प्रमोशन मिल रहा है। बट सर माय पॉइंट इज ऑलवेज दिस कि मतलब पैसा, चलो मैं कल को मैं बोल रहा हूँ मैं 1 अरब फुटबॉल में डाल रहा हूँ,
वो तब भी फंसे हुए रहेंगे, बिकॉज पैसा इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। करेक्ट। उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है, जड़ें मजबूत कैसे करनी हाँ। है, वो तो एक इंसान ही करेगा ना, जिसकी विजन है, काम करने का तरीका है। सही सही। सो दैट्स द प्रायोरिटी। तो एक चीज और मैं आपसे कुछ अलग पिच पे जाके ले जाके बात करते हैं। क्रिकेट के अलावा, जी सर। फुटबॉल के अलावा कोई और स्पोर्ट्स का भी आपने किया है? अभी मैं टेबल टेनिस करके आया था, कमेंट्री। Wow. इट वाज अ लर्निंग बिकॉज आफ्टर सो मेनी इयर्स आई फेल्ट अ लिटिल नर्वी। थोड़ा वो होता है कि जी ये क्या है यार, और बहुत ज़्यादा सुपर टेक्निकल स्पोर्ट है, न्यूआंस्ड है। और मेरे साथ एक अंग्रेज आके बैठा हुआ था, तो वो तो और भी ज़्यादा न्यूआंस जा रहा है, तो कभी कभी तो वो ऐसी मेरे सर के ऊपर से जा रही थी बात। तो मैंने अपने आप को बोला कि मैंने कहा यार जो ये ऑफर नहीं कर रहा वो मैं करूँगा। Correct. तो मैंने कहा मैं सिद्धू बन गया। ओए होए होए क्या शॉट मारा है यार, मजा आ गया। वो मैं उस लिहाज से घिसा अंदर। Definitely, you have to and have there's different space for flavor. everyone. फ्लेवर तो देना ही पड़ता है Yeah, गेम में। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। वो सिद्धू साहब So तो दे TT रहे was a हैं lovely मेरे learning. सालों से। बिल्कुल सिद्धू सर, साहब वो के साथ I कभी really like hearing him. I like अच्छा। hearing him. I think he's a wonderful storyteller. For me, anyone who can give a story from A to B is Yeah. anyone who can give it. But A to B in your way of saying it, Yeah. I have respect for you, sir. Definitely. नहीं जैसे तो टेबल टेनिस किया है सर मैंने, हॉकी थोड़ा किया है, फुटबॉल काफ़ी किया है, क्रिकेट तो किया है, उसके अलावा रेसलिंग, काफ़ी स्पोर्ट्स किए हैं सर मैंने। वेरी गुड। बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्क हैज बीन क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट आपका जो फेस है वो वेरी फेमिलियर विद क्रिकेट है, लेकिन बाकी भी विद क्रिकेट है, तो क्रिकेट बहुत काफ़ी किया सर जी, काफ़ी। क्रिकेट इज गेटिंग द प्रोमिनेंस इन दैट योर फेस इज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्रिकेट प्रेजेंटर। मेरा अभी क्योंकि मैं आता नहीं हूँ रेगुलरली, क्योंकि मैं सोनी पे काम करता हूँ, सोनी डोंट हैव सो मेनी राइट्स, सो आई एम स्टिल दैट गाय व्हेन आई सी समवन दे गो लाइक दिस, ये मैं वो हूँ चुटकी वाला, नाम आ रहा है पर समझ में नहीं आ रहा, तो वो ऐसे कर रहे हैं यार, ये वो है। आई एम दैट गाय, याद बराबर ऐसा हो जाता है कभी-कभी। हाँ जी। What was your sharing the mic with some of the recently retired cricketers like Irfan and Bhaji, Harbhajan Singh, or Bhaji is a wonderful guy. Bhaji के साथ I was sir love him. With Bhaji I did ILT20 दुबई में जी, लीग था वहाँ पे, उनके साथ कमेंट्री करी। Bhaji is very accommodating. I mean, I can what a personality is, you know. And the best part कि वो खेला हुआ बंदा है, वो जानता है मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, पर मैं थोड़ा अभी भी सीख रहा हूँ कमेंट्री। एंकरिंग में तो मैंने बहुत टाइम से कर रहा हूँ, पर कमेंट्री ऑफ लेट आई स्टार्टेड लास्ट 2-3 years से। To give me the space to make a mistake, okay, it speaks volumes about who you are, right? I've worked with other guys also who, if you made a mistake, they'll look at you like this. अच्छा, ऐसे कर रहे हैं, you know, ऐसा भी होता है। तो Bhaji was that, and I got to spend time with him in Dubai, got to know him very well, very funny guy. घर परिवार के बहुत ज़्यादा वो अपने करीब है, मैं भी कनेक्ट करता हूँ, बिकॉज मेरे भी अपने बच्चे हैं, मैं भी यू नो आई ऑलवेज फील फॉर दीज गाइस सर, कि इट्स हम लोग उनको बस उनकी अच्छी चीज़ें देखते हैं कि इतने पैसे कमा रहे हैं, ये लोग पागल हो रहे हैं, पर ये लोग घर से दूर रहते हैं। एक ज़िंदगी 20-25 साल से घर से दूर रहता है आदमी, अपने बच्चों से दूर रहता है, तो हर बारी वो फेस करता है, पापा आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। इट्स नॉट एन ईजी लाइफ, बिलीव यू मी। मेरी बैंड बज जाती है 1 महीने में सर, मेरे को याद आ रही होती है, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। वीरू भाई इज जस्ट सच अ वंडरफुल गाय टू वर्क विद, बिकॉज विद वीरू भाई आपको यू हैव टू बी इन योर टोज, बिकॉज आपने कुछ बोला वीरू भाई वहाँ पे पड़ैक मार सकते हैं आपको। वो तो वैसे उसके बैटिंग जैसी बात करते हैं, जैसे बैट्समैन जैसी बात करते हैं, ते तड़ाक, क्विक थिंकर, ते तड़ाक एकदम से वापस। एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज दैट वो टीवी के फॉर्मेलिटी में बह नहीं जाते। कभी कभी द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेक, इसकी टीवी का जी एक तरीका है बात करने, एक फॉर्मेलिटी है बात करने का। मैं कह रहा हूँ यार, स्पोर्ट्स में जिस माध्यम के बारे में बात कर रहे हो वहाँ पे फॉर्मेलिटी है नहीं, उसकी तरह बात करो ना भाई। जो बैठ के तुम्हें देख रहा है वो कनेक्ट करेगा तुम्हारे साथ। सो वीरू भाई अंडरस्टैंड्स दैट वेरी वेल, नॉट टेकिंग हिमसेल्फ टू सीरियसली।
गेम की बात करेंगे पर Hmm. बीच बीच में कुछ ट्याओ मार भी देते हैं. So Viru Bhai is wonderful. Ashish Nehra is again. I've done a reel also on Okay. this. That there's a perception on Ashish Nehra कि he's a very funny guy. हंसी मजाक चल रहा होता है. And he is. But as soon as आपने कैमरा ऑन किया और क्रिकेट का शो चल रहा है ना, हंसी मजाक बंद हो जाती है, साइड पे हो जाता है. Then he's talking cricket. Okay. And he's talking proper cricket. पट 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 बात करे जा रहे हैं. बीच बीच में then सप्लीमेंट करने के लिए अगर मन में आए बोल देंगे. And he's always talking cricket. He's अच्छा. consumed by it. Off camera also he's talking cricket. अबे वो उसको ऐसे खिलाया, वो क्या चेंज डाला, ये क्या करा, so चलते रहता है उनके दिमाग में. So a lot of these guys I've worked with. So Irfan I worked. I remember I did the show when IPL started with Star. So Irfan was on the show with us. तो इरफान के साथ काफ़ी टाइम बताया हुआ है. बट देन ऑफ कोर्स मैं स्टार से निकल गया हूँ. सो इरफान इज स्टक ऑन. अभी जाऊँगा अब मैं तीसरा टेस्ट करने के लिए, तो हिल भी देयर. Okay. तो उनके साथ फिर से कुछ ना कुछ करेंगे सर, गपशप. Fantastic. So ये बाकी जो प्रेजेंटर कमेंटेटर्स हैं, सिद्धू के तो आपने जिक्र किया है, जैन विवेक राजदान है या आकाश चोपड़ा हैं. वेरी गुड. या वेरी गुड. विद आकाश अगेन. आकाश के साथ जब स्टार में आए थे तो आकाश वाज देयर एक्सपर्ट एट द टाइम. दे हैड इन्वेस्टेड इन आकाश एज वेल एंड ही इज सो गुड एंड ही इज नॉन स्टॉप वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग गाय. एंड ऑफ कोर्स वेरी गुड एट व्हाट ही डज. बट एक मतलब यू आर गुड, बट देन मैं काम कर करके एक अलग लेवल पे पहुंच रहा हूँ. दैट इज आकाश. I'm working on myself, I'm working on my craft, I'm working on my content. He works on all these things. It doesn't come naturally. You He have to thinks be about always it. He writes them down. I believe in, you have to be a student of life always. Learn from 100%. everything, learn from everywhere, learn from every situation. बिल्कुल. It's the same with Navjot Sidhu sir. We tend to think कि ये कैसे बोल रहे हैं. He works for these things. He writes them down. Yes. तभी तो दिमाग में फिर वो ऑटोमेटिक निकलता है बात. In जब fact, कोई देख नहीं रहा तब मेहनत कर रहे हो. Navjot Sidhu has transformed himself from a silent person to the talkative personality of the country. That's what I hear. Yeah, that's what I hear. Yeah. Because he speaks a lot, and he, a lot of his शेर व शायरी बहुत चलते रहते हैं उनके. Then I Vivek sir के साथ commentary करी है. He's very good. Vivek speaks very again, the nicely, thing is he's sensible. yeah, Sensible बातें. but he's picked his way of speaking. Yeah. तो वो मैंने देखा है how he does commentary is he does third person commentary. Right. So what he does is अरे ये क्या कर रहे हो जनाब, Yeah. लेंथ ये नहीं डालनी है आपने, as opposed to saying अरे ये देखिए लेंथ गलत डाली है. तो वो थर्ड पर्सन कॉमेंट्री करते हैं वहाँ पे. Correct. अरे फील्डर लगाइए जनाब नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी. So he talks like that in commentary. That's his style of talking. His way of And of course command on language. Command on language. Command to language का होना ही. As a presenter, बहुत अच्छा है. how many languages you speak? दो ही सर. दो ही. फिर बीच बीच में कुछ टेढ़ा हो जाता हूँ तो कभी भोजपुरी निकल आती है बाहर, ओहो. या हरियाणवी बाहर आती है. वो तो उसका कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा होता हूँ. वो तो अगर कुछ स्टार में एक मेरे को यही तो होता था कि यार पंडित अगर तेरे दिमाग में कुछ आया ना कि तू कुछ करना चाहता है शो पे, मत करियो क्योंकि फिर हम भुगतेंगे. पर मैंने हर बारी बोला मेरे दिमाग में कोई टेढ़ा आ रहा है शो पे, मैं बोलने वाला हूँ, देखी जाएगी. फिर अगेन देखी जाएगी जो होगा. Then Sanjay Manjrekar is another person I've worked with a lot. And I really like his work. But he's super good. But Sunny sir? And he understands. Sunny sir के साथ भी काफी काम किया. His first time I worked with Sunny sir was at NDTV. He had come to do an IPL show. और मैं ऐसे कहाँ पर हूँ सर, मैं कहाँ पर था. I remember after him, it was him and Farooq Engineer. Oh my dear. And so much fun I had Farooq sir, such a what a personality. After the show I told Sunny sir, I said sir sorry मैं थोड़ा काँप रहा हूँ अभी भी, इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही थी मेरी. And the beauty is sir, they've worked with so many of people like us. Right. They have no reason to accommodate us, but they do. They do. accept the people, yeah. Because sir, they've gone through it. Yeah, It's a phase. कि मैं भी डरा हूँ, सनी सर भी एक टाइम पर डरे होंगे यार, आई एम फीलिंग आउट ऑफ प्लेस. उनके ऊपर भी किसी ने हाथ रखा होगा. ये जो एक आजकल एक नैरेटिव हम लोग चढ़ाते हैं ना कि मी माई सेल्फ माई ग्राइंड, मैं अपने आप करूंगा, कुछ नहीं होता. जिंदगी में किसी को आगे बढ़ना है, किसी का ऊपर हाथ होना बहुत जरूरी है. होना जरूरी है. बिल्कुल. नहीं आप नहीं कर सकते आप. वो अपने देश की संस्कृति है भैया. बात सही बोली. बिन गुरु बेटा, बिन गुरु शिष्य कहाँ.
गुरु का तो होना ही हाँ चाहिए कहीं ना किसी रूप में, होता ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो दैट वे आई बीन लकी कि मेरे को किसी ना किसी ने, अगर मैं गंद भी मचा रहा हूँ, कोई है वहां पे कि नहीं नहीं नहीं, परसिस्ट, परसिस्ट टू देम। ऐसे ऐसे आई हैव हर्ड पीपल लाइक दिस अक्रॉस माय वेरियस दैट्स फेजेस, कि वो डेफिनेटली। अभी तक गाड़ी चल रही है थोड़ी आप बहुत। अर्जुन हो तो कोई ना कोई द्रोणाचार्य जरूर होंगे आपके लिए भी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस एक दो ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा होते हैं, फिर ज्यादा मैं नहीं उनको है हटा ना, देता हूँ बिल्कुल साइड पे, लो जी। नहीं, सही है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा अर्जुन, अभी आपके पास कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या किसी इवेंट में आप कर रहे हैं ऐसा कुछ? सर अभी मैं तीसरे चौथे टेस्ट के लिए जा रहा हूँ सोनी अच्छा। पे, ओके। हिंदी शो करने के लिए। अभी इससे पहले मैं गुजरात में था 1 महीना, वहाँ पे टेबल टेनिस और फिर बड़ौदा T20 लीग की कमेंट्री कर रहा था। तो मैं अपने बच्चों को बोल रहा था कि एक तो उनने मेरी शक्ल भूल गए कि हमारा पापा कौन है। दूसरा मैं उनको कह रहा था कि अब मैं घर पे आ रहा हूँ तो मेरे को मोटा भाई बुलाया करो, कि मैं जी अच्छा। थोड़ा टाइम लगेगा वापस। नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट। बट यही है, अभी इट्स दीज टू थिंग्स ओनली, दैट्स द वे इट वर्क्स फॉर अस। देयर आर सम गुड मंथ्स, देयर आर सम मंथ्स वे यू हैव नथिंग इन हैंड, and it's a case of demand supply, and then it's a case of how much you want and are you happy with the amount that's being offered to you. So वो अप एंड डाउन चलते रहता है सर, इसमें थोड़ा है वो वाला जिंदगी अप है एंड तो डाउन। उतार चढ़ाव तो होता ही है। हाँ बट येट अगेन दिस एनवायरनमेंट, सो आई एम फाइन, आई एम Fantastic, लकी। fantastic. हाँ Now, जी। we are coming to almost wrapping up, but before that, like any message for your fans, like in front of you, there is one fan listening to you. मैं आपको बता दूं सर, असली में और कोई नहीं मिला क्या? इसीलिए तो आपको पूछ ऐसा रहे कुछ नहीं है सर, थे। ऐसा कुछ नहीं सर। मेरा बस यही सिंपल सा फंडा है कि मतलब मैं आई टेंड टू नॉट टेक appreciation very seriously. I don't mean it in a bad way. I tend to, आओ निकलो, you know, I tend to not take it very seriously. This is from my own perspective, and because it can be a little too much at times. Appreciation can be too much, gali can be too much, and then it can cloud your confidence. It can cloud what your जो मेरा ये एक जोन है, I protect that. You know, so I, जब काम खत्म हो जाता है तो फिर मैं इंडस्ट्री के लोगों से ज़्यादा मिलता नहीं हूँ। दैट वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैंने जब स्टार छोड़ा, मैंने कहा जी मैं घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे बम्बई में, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को सूट नहीं करता। आई लाइक माई एरिया, मेरे दोस्त हैं बचपन के, मेरे खेलने वाले बनते हैं। तो काम खत्म होता है, आई स्विच ऑफ। मैं फिर अगेन अपने बंदों के साथ इधर उधर कुछ घूम रहे हैं, and it's the last thing on our mind, how work is going or not going, then we're talking about different things, and so in a way I'm fresh ये स्विच when I ऑन go स्विच in ऑफ next. वाली नेचर है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज मैं जब वहाँ पे था चैनल वाले में, देन यू ऑल कंज्यूम्ड बाय, अरे वो देखो उसको एंकरिंग करा रहे हैं, हमें नहीं करा रहे हैं, अरे वो देखो हमें नहीं बुलाया, वो देखो मुझे वो शो के लिए बुलाया, it puts you in a bad space sir. You know, so rather than that, just out of sight out of mind, Fantastic. करो और आगे निकलो, Fantastic. बस वही। Now, one question which comes to my mind is you yourself a now well-known popular presenter. If the new generation wants to pick up, what are the innate qualities Yes. one should have? You will never have those qualities initially. You will develop it over time. Okay. So in our time, when I started, this was not there, Yeah, correct. right? Right. I mean, it was there, but talking Not into so it prominent. and doing all this was not there at all. तो जब आपने भगवान को आपको ये दिया हुआ है, and rather than saying कि जब मुझे चैनल वाला बुलाएगा तब मैं करूँगा, why don't you ground yourself in facing camera and talking to camera, Yes. in coming up with words. Yes. एक जनरली प्रॉब्लम क्या होता है सर हमारे उसमें, हम सवाल पूछने वाले बंदे हैं, हमने सवाल पूछा, बंद, वहां से जो आ रहा है चलो। एक वो होता है, एक होता है कि जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर वो चल रहा है, बातचीत चल मैं रही भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, बिल्कुल, आप भी कर रहे हो, बिल्कुल। और वो आता है जब आप कंफर्टेबल होते हो टू से Yes. समथिंग। पहले क्या होता था कि मैं जी 2 शब्द 3 लाइन के ज्यादा अगर कुछ बोलना है तो थोड़ा कैसे करें, क्योंकि आदत नहीं है।
जिंदगी भर सवाल पूछा है, कैसा खेला है, अच्छा खेला है, बुरा खेला है। अब थोड़ा और तो उसको डेवलप किया है। तो जब आपके पास ये एक माध्यम है, उठाओ, रिकॉर्ड करो, और डोंट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग व्हाट इज द राइट फॉर्मूला. You will not get it. The right formula will come when you keep on doing it. Yes. You will keep on doing it. गड्ढे में गिरोगे, एक दिन निकलना सीखोगे, अपने आप ही करोगे, and you'll find your way that way. Fantastic. Very nicely said. And this is the very basic of any profession you take up. बिल्कुल सर, बिल्कुल. As a journalist, we were told that the best way to write is what? Best way to write is to write. Is to write, 100%. Best way to speak is to speak. Yeah. That's the basic mantra. I very well accept this one, and I wish you all the best in your life, in your personal life. Thank you so much, sir. And whenever you do any program, presentations, you bring laurels to yourself, your country, your family, and we'll be always proud of you. Whenever you are in Bombay, we'll catch up. Whenever you are in Bombay. And if 100%. I get a chance to come to Delhi, so definitely we are in with you. And sometimes next time again we'll have a big chat, and maybe in a more presentable way as you do it. Let us see. And all the best to you. Thanks for your time for this channel as well as myself. Wishing you all the best in your life. Thank you so much, sir. It was lovely chatting with you, and with someone like you who of course knows the industry so well. तो आप समझ रहे थे exactly. And just thank you for having me. And अगर आप जो बच्चे बैठ के देख रहे हैं कि जी मैं आखिरी बंदा हूँ फॉलो करने वाला, don't follow anyone with all due respect. I don't have idols. I don't mind it in a bad way. Just believe in yourself. अपने ऊपर भरोसा रखो कि सबको भगवान ने एक ये जो दिया है ना इन दोनों के बीच में, सबको वो एकदम ज़बरदस्त दिया है. तो अगर आपको और भगवान ने हाथ ऊपर रखा और ये सब कुछ ठीक है, बिकॉज बहुत लोगों का नहीं भी होता, अनफॉर्चुनेट होते हैं, तो भाई फिर उसका फायदा उठाओ. The cards you've been dealt, then make full use of those cards that you've been dealt, and of course you'll find something for yourself. Definitely. So nicely well said यार, बहुत अच्छा लगा. और definitely we'll keep in touch, or maybe whatever communication we can do wherever you are getting time, and wish you all the best in your maybe forthcoming event, and let us see the India comes back with victory there in England. Yeah, hopefully. All the best. Thank you, sir. Thank you so much. इतना ज्ञान देने के बाद अब मुझे फोन आ गया, बाबा रामदेव वापस आ जाओ. तो मैं कहा ठीक है जी, आ गया वापस बाबा. ठीक है सर. Thank you. Okay sir, thank you so much.